Well, good morning everyone and welcome back to Data Structures Theory session. No more internal talking now and focus here. Okay, settle down. So we were discussing singly linked list and we have seen insert operations also. We are about to start delete operations, and as we talked earlier, we will see delete first, delete last, maybe delete before or after, and maybe all occurrence. So let's start with the first one, delete first. If we want to delete the first node, first value, then what we should prefer, or what we should perform so that value will be deleted as well as memory will become free. Now when you go and delete something, you actually need to just make that memory free. If you make your memory free, you do not have rights to access that memory now, which means others may use it. So let's say we have start, which is pointing to the first node of singly linked list. And your linked list is having any values. Now directly if you start with this thinking, then you say, okay, if I do have multiple nodes, then when I want to delete the first value, I want to delete this node, right? And if you delete that node, then remaining linked list will be as it is, no change there. The only change that happens here is if you are going to delete your first node, then your second node becomes the first one, and in that case you should update your start. अगर पहला नोड डिलीट कर दिया तो सेकंड नोड पहला बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, और उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने स्टार्ट को अपडेट करोगे. पहला नोड डिलीट होने के बाद आपका स्टार्ट सेकंड पे पॉइंट करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी वांट. और वहां से लेके आगे फिर जो है एज इट इज. नाउ इफ योर फर्स्ट नोड इज 4, तो 4 के पास सेकंड नोड का एड्रेस है विच इज 6. 6 के पास थर्ड नोड का एड्रेस है विच इज समथिंग गोइंग टू बी कंटिन्यूड, और अगर लास्ट नोड है देन देयर विल बी नल. So this is what we have to perform when we want to delete the first node. हमें उस नोड की मेमोरी फ्री करनी होगी और स्टार्ट को अपडेट करना होगा. Now that's the normal case, but what if, let's think about the special case. What if your start is pointing to the node which happens to be the only node in your linked list? What if you have only one node inside your linked list and you want to delete first? तो इसको तो आप delete करोगे ही. But in that case, what should happen is your start should be updated and it should point to the next node. Now, what is your next node? There is no next node, so it should become null. Right? Now, there is one more case possible. What if your start is already null? The linked list is empty, nothing to delete. अगर कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट के पास तो आप डिलीट क्या करोगे? So you'll simply print a message, linked list is empty, nothing to delete there. So these are the 3 different cases which we think about, and now we need to decide कि भाई ये 3 केस हम अलग से हैंडल करेंगे या फिर कोई केस हम मर्ज भी कर सकते हैं. What should we do? So you think about the first case. If your start is already null, then definitely you are going to print a message, linked list is empty, nothing to delete, and you are done. You are done with your process. In the else part, you have to think about other 2 cases. In the else part, you have to think about other 2 cases. अगर पहला केस हम सोचते हैं
where we have something, we have start pointing to the first node जिसको हम delete करना चाहते हैं. You want to delete the first node, उसका backup ले लिया del में, okay, so that you can make it free. del को आप free कर सकते हो. Now why should we take extra variable del? Because before we make that block free, इससे पहले कि आप ये मेमोरी को फ्री करो, आपको सेकंड नोड का एड्रेस कहां से मिलेगा? उसी नोड से मिलेगा ना. अगर उस नोड को आप फ्री कर देते हो तो एड्रेस गया. सो बिफोर वी मेक इट फ्री, हमें उसके पास से एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए. we take that address. नेक्स्ट एड्रेस जो है वो उसी के पास से मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू अपडेट आवर स्टार्ट. राइट, एंड देन वी मेक इट फ्री. अब आप ये बोल सकते हो कि सर अगर डेल और स्टार्ट दोनों एक ही है, देन कैन आई राइट, can I directly go for start points to next? Start equals to start points to next. ये स्टेटमेंट चलेगा. सेकेंड नोड का एड्रेस आपको स्टार्ट के अंदर मिल जाएगा. बट व्हेन यू अपडेट योर स्टार्ट, तो पहला नोड कहाँ गया? जिसको डिलीट करना चाहते हो उसका एड्रेस किसके पास है? हाँ, if I do not take this extra variable, and what I do is I simply do start equals to start points to next. तो start जो है वो सेकंड नोड पे जंप कर देगा. That's what we want. हमें अपने स्टार्ट को सेकंड नोड पे लेके जाना है. इट वर्क्स परफेक्टली. बट उसके बाद हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, लेकिन फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? अब नो वन मेंटेन्स दैट. स्टार्ट को तो अपडेट कर दिया आपने. दैट्स द रीजन वी नीड एक्स्ट्रा वेरिएबल हियर. That's the reason we take backup of first node in some temporary variable so that we can make it free later on. हम उसको फ्री कर सके. Now that handles your first case. How about second one? How about this one? Will it be handled by this code या फिर उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा? What do you think? आपके पास एक ही नोड है विच इज स्टार्ट. उसका बैकअप ले लो डेल में. ओके, ले लिया. देन यू अपडेट योर स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट नेक्स्ट या तो फिर डेल नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंटर वैल्यू? नल. तो स्टार्ट नल हो जाएगा, एंड देन यू मेक डेल फ्री. डिलीट कर दिया. डन. So the same code will work for the second case also, and that's why we need not to write if else here. ये दोनों केस को यहाँ पे अलग से हैंडल करने की जरूरत नहीं है. These three line of code will handle both the cases perfectly. And that's your delete first. Delete first in the singly linked list. So if you look at the algorithm, this is the same algorithm. If your start is already null, underflow, there is nothing to delete. अगर start null नहीं है, then you take some temporary variable जिसको आप बाद में फ्री करोगे. बट इससे पहले कि आप उसको फ्री कर दो, उसके पास जो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का वो उठा लो, एंड देन यू रिटर्न योर स्टार्ट. अब यहां पे आप स्टार्ट लिखो या ptr लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ आर इक्वल, राइट? So that's the simple
delete first algorithm. Yes? Right. Look, in your stack, when you do pop operation, you simply do top minus minus. Now that was the array implementation of stack. जब आप array बनाते हो, then it has a static memory allocated. आप उसको free करने नहीं जाते हो, right? And there is no way you can make one element free from the array. ये भी सही है. अब यहाँ पे हम free क्यों करते हैं? Because when we have inserted a new node, we have done malloc. इंसर्ट ऑपरेशन में हमने क्या किया था? malloc रन टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई की थी, तो रन टाइम उस मेमोरी को फ्री भी करेंगे. सो हियर विल मेक इट फ्री. क्लियर? ओके. वेल that's the delete first. Let's have a look at delete last. Same three cases. What if your linked list is empty? अगर लिंक लिस्ट खाली है तो कोई लास्ट नोड है ही नहीं. Underflow, print a message, return. Right? What if you have a single node? The first node itself is the last node. उसको आप delete करोगे तो start null हो जाएगा. Correct. So that's the second case. And the third one, what if you have multiple nodes? If your start is null, nothing to delete. If your start is pointing to the node which happens to be the last node, मतलब start के next में अगर null है तो वो last node है और हमें उसको delete करना है, then your start should become null. और अगर स्टार्ट जो पॉइंट कर रहा है वो आपका फर्स्ट नोड है और आपके पास एक से ज्यादा नोड भी है, देन यू आर गोइंग टू ट्रैवर्स योर लिंक लिस्ट बिकॉज यू वांट टू डिलीट द लास्ट नोड. अगर लास्ट नोड डिलीट करना है तो वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा. एनी हाउ यू हैव टू रीच अप टू दैट प्लेस. सो लास्ट तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा अपना लिस्ट. एक बार वहां तक पहुंच जाओ तो टीआर को फ्री कर सकते हो. इफ टीआर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड देन यू कैन मेक इट फ्री. बट बिफोर यू मेक इट फ्री, सेकेंड लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट होना चाहिए एंड इट शुड बिकम नल. तभी आप ये लिंक ब्रेक करोगे. अब सेकेंड लास्ट नोड कैसे मिलेगा? डू यू हैव दैट एड्रेस? ऑलवेज फर्स्ट के पास सेकेंड नोड का एड्रेस रहता है, सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस नहीं. अगर पांच नोड है तो क्या करोगे? प्री पीटीआर. यस, वी कैन हैव वन मोर वेरिएबल जिसको हम टीआर के साथ खींच के लेके जाएंगे पीछे पीछे. Well, in that case, what happens here is you can start with pre, और जैसे ही TR आगे बढ़ेगा आप pre को पीछे पीछे लेके जाओगे. So pre will be pointing to the previous node. अब अगर आपके पास previous node है तो उसका next null कर दो. Right? Now this is what we think. Okay, अब इसका कोड अगर लिखना है then we simply go for if your start is equals to null, then print message underflow, nothing to delete. जो भी मैसेज देना है दे सकते हो. Else if,
Now I'm going for else if later here because we have to handle this case separately. क्योंकि वहां पे start update होगा. Your start will become null. जबकि थर्ड केस में आपका स्टार्ट अपडेट होगा ही नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा. एंड दैट्स द रीजन हमें ये दोनों केस अलग अलग लिखने पड़ेंगे. सो एल्स इफ योर स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट is null, this indicates you have only one node. जो एक नोड है वही आपका फर्स्ट नोड है, वही आपका लास्ट नोड है, आप उसी को फ्री करना चाहते हो. मेमोरी को उड़ा दो, अब उसकी एड्रेस की जरूरत नहीं है. यू सिंपली असाइन स्टार्ट इक्वल्स टू नल. स्टार्ट को नल कर दो. एंड देन इन द लास्ट एल्स पार्ट, अगर आपके पास एक से ज्यादा नोड है तो क्या करोगे? इन दैट केस यू विल टेक प्री एंड यू विल टेक टी आर, राइट? जीरो नोड, वन नोड, तो ये वाला केस किसके लिए है? मोर देन वन नोड्स. अगर एक से ज्यादा नोड है, आपको पक्का खबर है, तो आप अपना ट्रावर्सल सेकेंड नोड से स्टार्ट कर सकते हो. आपको पता है, पक्का पता है कि आपके पास एक से ज्यादा नोड है, तो आप अपना ट्रावर्सल सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हो या नहीं? यस. चलो टीआर जो है हम डायरेक्ट सेकेंड नोड से लेते हैं, चलेगा? तो फिर प्रीवियस कौन बनेगा? स्टार्ट. करेक्ट. Leave it. Yeah. So that's how we initialize our two variables, and then we simply go for traversal process while some condition, and before you update your tr you make backup of tr in pre, और उसके बाद आप tr को update करोगे. tr points to next. Now there are multiple statements, so curly bracket. Now up to what process we are going to traverse it? टीआर को लास्ट नोड पे रोक देना है. टीआर पॉइंट्स टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल. सो अपना टीआर जो है वो लास्ट नोड पे रुक जाएगा. दो ही केस हो सकते हैं, या तो लास्ट नोड पे रुक जाओ, या तो फिर पूरा लिस्ट खत्म करके बाद में रुको. लास्ट नोड पे रुकना है तो नेक्स्ट नॉट नल, और पूरा लिंक लिस्ट खत्म होने के बाद रुकना है तो टी आर नॉट इक्वल्स टू नल. यही याद रखोगे आप. सो दिस लूप विल स्टॉप एट लास्ट नोड. टी आर विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड. ओके, टी आर लास्ट नोड पे है, उसको उड़ा दो. सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट नल होना चाहिए. व्हाट इज योर सेकेंड लास्ट नोड? प्री. उसका नेक्स्ट नल होना चाहिए. खत्म. अब इस केस में हम स्टार्ट को अपडेट नहीं करेंगे. स्टार्ट जहां पे भी है रहने दो. एंड दैट्स द थर्ड वन. we haven't updated start in the third case. जो पहला नोड था वो ऐसा ही है, आपने सिर्फ लास्ट नोड को डिलीट किया. सो this one is the same algorithm. If your start is null, underflow. If you have only one node तो start का next null होगा. वहां पे आप क्या करोगे? स्टार्ट को फ्री करके स्टार्ट नल कर दोगे एंड यू रिटर्न. If you have more than one node, then you have to traverse. So
PTR एंड प्री PTR. नाउ यहाँ पे मैंने PTR स्टार्ट से मतलब पहले नोड से ट्रावर्स किया, चलेगा. लेकिन अगर आप सेकंड नोड से ट्रावर्स करते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लूप कम चलेगी. बोथ आर करेक्ट, जो लिखना है लिख सकते हो. सो वी आर गोइंग टू ट्रावर्स अ लिस्ट जब तक आपका PTR नेक्स्ट नल नहीं हो जाता. You are going to take backup of PTR and then update your PTR. Your loop will break when your PTR is at a last node. तो प्री PTR के नेक्स्ट को नल करने के बाद PTR को डिलीट कर दो and you are done. And there was a possibility where you might have updated start. That's why we return start. Okay? अगर पूरी प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी आप स्टार्ट को अपडेट करते हो तो स्टार्ट रिटर्न करना है. दैट्स योर डिलीट लास्ट. यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बोथ आर सेपरेट वेरिएबल्स. नन ऑफ दीज वेरिएबल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, तो चलेगा. Yeah, so any other query? So let's jump to the next one. At position, खुद कर लो, मैं आपको बिफोर दिखाता हूं. बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर. डिलीट बिफोर के लिए मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक वैल्यू दूंगा जिसके आगे वाला नोड डिलीट करना है. एट पोजीशन में आप क्या करोगे, अप टू दैट पोजीशन ट्रैवर्स करके चले जाओगे एंड देन यू विल डिलीट दैट नोड. तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट अपडेट करने के लिए आपको प्री PTR चाहिए, सो दैट यू कैन डू. बट बिफोर के लिए एक और स्टेप लेना पड़ेगा. लेट्स हैव अ लुक एट इट. Now look, if your start is already null, underflow message, ये वाला कॉमन रहेगा हर एक डिलीट ऑपरेशन के अंदर. फाइन. Now what if your start is pointing to a node? Let us say we have a linked list. We have a linked list and now there might be possibilities of what is your existing value. यूजर ने existing value क्या दिया. अगर यूजर ने existing value 2 दिया तो आप कुछ डिलीट कर पाओगे. Will you be able to delete something before 2? No. And that is one special case. अगर existing value आपको फर्स्ट नोड में मिलती है तो आप ये बोलोगे कि there is nothing to delete before the first node. एक केस हुआ. What if user has given 4 as an existing value? 4 के आगे वाला नोड डिलीट करना है, मतलब क्या हुआ, 2 को डिलीट करना है. एंड that is the same case डिलीट फर्स्ट, जो प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख लिया. Now what if user has given value 6? तो आप किसको डिलीट करोगे, 4 को. एंड व्हाट इफ यूजर हैज गिवन वैल्यू 8? तो आप 6 को डिलीट करोगे. मतलब लिंक लिस्ट के अंदर बीच में से कहीं ना कहीं डिलीट हो रहा है.
and this process we have to handle. अब कैसे पता चलेगा किसको डिलीट करना है? We have to traverse a linked list and we have to search existing value. eval यूजर ने जो वैल्यू दिया वो वैल्यू आप सर्च करने जाओगे. You will go and search that value. जैसे ही आपको वो वैल्यू मिलेगी तो आप बोलोगे अच्छा इसके आगे वाला नोड डिलीट करना है. And what if user has given 10? What if user has given 10? Value not found. जब सर्च करने जाते हो आप पूरा सर्च ऑपरेशन खत्म कर लो, तभी भी अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिली तो लास्ट में बोलोगे वैल्यू नॉट फाउंड, उससे पहले नहीं. So here comes the search operation. We have seen the search operation at the time of traversal process. याद है किसी को? सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना. ट्रावर्स के बाद हमने देखा था हाउ टू प्रिंट इट, हाउ टू काउंट नोड्स एंड हाउ टू सर्च अ वैल्यू. The same task we have to go for searching the value here. अगर आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो तो आप टीआर के डेटा को कंपेयर करोगे. ट्रावर्स कैसे करते हैं? टीआर से. और अगर वैल्यू सर्च करना है तो टीआर का डेटा कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, लेट्स टेक टीआर. लेट्स टेक टीआर और मान लो कि ये फर्स्ट नोड का डेटा और वो सब वाले केस, स्पेशल केस अलग से हैंडल हो गए. वी हैव टू ट्रावर्स. तो हम क्या करेंगे, हम टीआर से टीआर को स्टार्ट नोड पे रख देंगे and then we are going to traverse this linked list tr equals to tr points to next. लेकिन उसको हम ट्रावर्स कब तक करेंगे? जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलती. सो tr points to data is not equals to existing value. tr points to data is not equals to your existing value. अगर ये नहीं होता है तो आप ट्रावर्स करोगे. राइट? वेयर इज योर टीआर? you'll start with tr equals to start. टीआर पहले नोड पे है तो आप क्या करोगे, पहले नोड के डेटा को चेक करोगे. इज इट 6? नो. देन वी आर गोइंग टू ट्रावर्स इट, मतलब टीआर जाएगा सेकंड नोड पे. अब सेकंड नोड का डेटा चेक करेंगे. इज इट 6? 4 6? नो. और भी टीआर को आगे बढ़ाओ. टीआर विल गो टू द थर्ड नोड. उसके बाद आप चेक करोगे टीआर पॉइंट्स टू डेटा. इज इट 6? थर्ड नोड का डेटा 6 है. यस. स्टॉप इट. So this process is going to traverse your TR up to the node where you found your value. TR पहुंच गया 6 पे. Now what do you want? You want to delete a node which is before 6. और अगर बिफोर 6 आप डिलीट करना चाहते हो देन यू हैव टू अपडेट दिस थिंग. नॉट ऑलवेज स्टार्ट. बिफोर 2 स्टेप बैक. टीआर के अगले नोड को डिलीट करोगे तो उसके अगले वाला जो नोड है वो टीआर को पॉइंट करेगा. अगले वाला नोड तो प्री पॉइंटर हम लेके कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे. उसके अगले वाला नोड कैसे मिलेगा? तो 2 प्री पॉइंटर लेने पड़ेंगे. प्री पॉइंटर 1, प्री पॉइंटर 2. राइट? टीआर ले लिया, प्री ले लिया और प्री ले लिया. इट कैन बी डन लाइक दिस वे. लेकिन इससे थोड़ा अच्छा सोचते हैं. Why should I traverse my TR up to the node which is having that value?
क्यों ना मैं टीआर को ही अगले नोड पे रोक लूं। टीआर को 6 तक नहीं लेके जाना है, टीआर को मैं 4 पे रोकना चाहता हूं। सो आई डोंट वांट टू ट्रैवर्स माय टीआर अप टू द 6। आई वांट टू स्टॉप इट एट 4। 4 पे रोक देना है मुझे। लेकिन 4 पे कब रुकूंगा? जब मुझे ये पता चलेगा कि हाँ नेक्स्ट वैल्यू 6 है, जो मुझे चाहिए वो मुझे नेक्स्ट में मिलेगी, तभी यहां पे रुकूंगा। इज दिस क्लियर? क्या इतना समझ में आ गया आपको? एक स्टेप पहले ही अगर आप रुकना चाहते हो तो आप चेक क्या करोगे? नेक्स्ट को चेक करोगे कि अगर आगे 6 मिल रहा है तो यहीं पे रुक जाओ। सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर टीआर डेटा, आप ये बोलोगे कि अच्छा टीआर का डेटा नहीं, टीआर के नेक्स्ट का जो डेटा है उसको कंपेयर करूंगा। नेक्स्ट में जो डेटा है उसको कंपेयर करो, और अगर वो इक्वल मिलता है तो रुक जाओ। नाउ व्हेन यू स्टॉप हियर, ओके, then your TR will be at a node which actually you want to delete. TR को ही आप डिलीट करना चाहते हो, तो उसके आगे वाला नोड, वेल देयर इज नो वे, आपको एक तो प्री लेना ही पड़ेगा। एक तो प्री लेना ही पड़ेगा, which means when you traverse you have to get backup of TR in pre. Now when you do this, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि हाँ मैं क्या करूंगा, टीआर को फ्री कर दूंगा, बट बिफोर दैट मेरा जो प्रीवियस नोड है उसका नेक्स्ट अपडेट करना है। प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए। अब वो मतलब 2 का नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए। कहां पे पॉइंट करेगा? 6 पे। अब 6 का एड्रेस कहां से मिलेगा? 4 के पास से, और 4 किसके पास है? टीआर के पास। सो विल से टीआर नेक्स्ट, देन वी मेक इट फ्री। हम टीआर को फ्री कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। अगर आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू मिलती है तभी आप ये प्रोसेस करते हो। अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा? सो वी रन दिस व्हाइल लूप टू सर्च अ वैल्यू, लेकिन ये व्हाइल लूप कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। वैल्यू मिलती है तो रुक जाएगी, वैल्यू नहीं मिलती है तो कहां पे रुकेगी? एडिशनल कंडीशन। योर टीआर नेक्स्ट शुड नॉट बी नल, तभी आप नेक्स्ट का डेटा चेक कर पाओगे। अगर टीआर का नेक्स्ट नल हो गया तो नेक्स्ट का डेटा तो मिलेगा ही नहीं। So that is one additional condition. If tr next is not null, then we go and check the value of next node and we compare it with existing value. अब ये लूप चलेगा। अगर existing value नहीं मिलती है तो tr का next null हो जाएगा। If tr next is null, value not found. ठीक है? अगर पूरा लिंक लिस्ट खत्म कर दिया फिर भी वैल्यू नहीं मिली तो लास्ट में बोलेंगे वैल्यू नॉट फाउंड। And this is the process of deleting a node before some given value. Now your question. Louder please. We are going for linear search, so we will always focus on the first occurrence.
जैसे ही पहली एग्जिस्टिंग वैल्यू इक्वल मिलेगी, दिस प्रोसेस विल डिलीट अ नोड बिफोर दैट. आगे है, चेक नहीं करना है. We'll handle those kind of cases in delete all occurrence. Okay, any other query or question? Let's look at the algorithm. The same process in terms of algorithm statement. If your start is null, then underflow. अगर start का data ही existing value है, then nothing to delete. ये दोनों केस को एक if में लिख दिया, चलेगा? Right? Both those cases are handled in a single if statement, and you simply return. Now then what you do is you are going to traverse your list. So PTR को पहले नोड से स्टार्ट करो, प्री PTR को null. ओके, एक और स्पेशल केस था जो हैंडल करना था, विच मीन्स अगर सेकेंड नोड का डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो आप डिलीट फर्स्ट करते हो. डिलीट फर्स्ट मतलब स्टार्ट को आप फ्री करना चाहते हो, स्टार्ट को नेक्स्ट नोड पे लेके जो बैकअप लिया था स्टार्ट का वो फ्री कर दो. स्टार्ट का बैकअप प्री में लिया, प्री को फ्री कर दो और स्टार्ट को सेकंड नोड पे लेके जाओ, एंड देन यू रिटर्न. तो ये स्पेशल केस भी हैंडल हो गया. अब अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में है तो हम नॉर्मल ट्रावर्सल प्रोसेस पे जाएंगे. रिपीट योर स्टेप्स. कब तक रिपीट करोगे? जब तक नेक्स्ट का डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं मिलता है तब तक. एक एडिशनल कंडीशन रहेगा कि आपका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए. टिल दैट टाइम यू आर सिंपली गोइंग टू ट्रावर्स और पीटीआर का बैकअप लेंगे प्री पीटीआर में. व्हेन वी स्टॉप दिस ट्रावर्सल प्रोसेस, हमें ये नहीं पता है कि वैल्यू मिली या लिंक लिस्ट खत्म हुआ. ये व्हाइल लूप जब लिखा आपने तो आपके पास दो कंडीशन थी. अब दोनों में से कौन सी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका लूप ब्रेक हुआ ये आपको पता नहीं है. दैट्स व्हाई यू हैव वन मोर इफ. अगर पीटीआर का नेक्स्ट नल है मतलब पूरा लिंक लिस्ट खत्म हो गया, वैल्यू नॉट फाउंड. अदरवाइज आपको वैल्यू मिली होगी और उसका प्रीवियस नोड आपको डिलीट करना है. सो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट और पीटीआर को फ्री. रिटर्न योर स्टार्ट एंड डन. So that's your delete before. Understand the process once more, then we'll go further and have a look at other delete operation. ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीट आफ्टर. आफ्टर तो इजी हो जाएगा. एग्जिस्टिंग वैल्यू को सर्च करके वहां तक पहुंच जाओ.
जहां पे रुकोगे उसके बाद मतलब नेक्स्ट वाला नोड डिलीट करना है। नेक्स्ट को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करोगे, इजी। और उस केस में आपको ये नेक्स्ट का डेटा चेक नहीं करना है, डायरेक्ट डेटा चेक करो, बिकॉज यू वांट टू ट्रैवर्स टिल द नोड which contains your existing value. So delete after is going to be very much simple one. Let's directly have a look at algorithm. अगर start null है तो underflow, वरना हमें traverse करना है. We want to traverse. Okay, PTR ले लिया. And we are simply going to traverse a linked list until we found the existing value in the data part. PTR points to next, not equals to existing value. Make sure your PTR should not become null. अगर PTR null हो जाएगा तो linked list खत्म हो गया. We simply traverse PTR equals to PTR next. अब एक extra variable del लिया. We'll see why we need it later. लेकिन traversal process में उसको use नहीं किया, remember. Okay? A normal traversal process is here. Now when you terminate this traversal process, तो आपको देखना होगा कि भाई PTR null हुआ या वैल्यू मिल गई. So we have a condition. If PTR is null, value not found. If PTR is not null, तो आप else part में जाओगे. else part में कब जाओगे? जब आपको वैल्यू मिली. अगर आपको वैल्यू मिल गई तो आपको ये देखना है कि उसके नेक्स्ट में क्या है. Is there something that I can delete? वैल्यू जो मिली है वो लास्ट नोड है तो क्या करोगे? वैल्यू जहां पे भी मिली है वो अगर लास्ट नोड है तो उसके नेक्स्ट में कुछ है जो आप डिलीट कर पाओ? नो. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ PTR इज नॉट नल देन वी हैव टू चेक PTR नेक्स्ट. अगर PTR का नेक्स्ट नल है तो आप बोलोगे देयर इज नथिंग टू डिलीट. उसके बाद कुछ है ही नहीं जो मैं डिलीट करूं. सो अगर PTR नल नहीं है, PTR का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है जो आप डिलीट करना चाहते हो. उसको मतलब PTR के नेक्स्ट को आप एक टेम्पररी वेरिएबल में लोगे सो दैट यू कैन मेक इट फ्री. उसको आप फ्री कर सको. अगर उसको आप फ्री कर रहे हो मतलब नेक्स्ट नोड को आप डिलीट कर रहे हो, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट नोड जो है वो एड्रेस मुझे चाहिए. मतलब जिसको मैं फ्री कर रहा हूं उसका नेक्स्ट मुझे चाहिए. कहां पे रखूंगा? करंट नोड के नेक्स्ट में. With some traversal process you have reached to a node which is pointed by TR, and you have few further nodes. Right? If you want to delete after 6, then actually you want to delete 8. If you want to delete 8, तो TR का नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए and it should go to 10. अब 10 कहां से मिलेगा? 8 के नेक्स्ट से मिलेगा. 8 कहां से मिलेगा? TR के नेक्स्ट से मिलेगा. So we'll take one temporary variable del. Del कैसे मिलेगा? TR के नेक्स्ट से. अब मुझे क्या करना है? TR का नेक्स्ट अपडेट करना है. क्या जाना चाहिए? एड्रेस ऑफ 10. 10 का एड्रेस मुझे कहां से मिलेगा? डेल के नेक्स्ट से. अब अगर ये लिंक आपकी मैनेज हो जाती है तो बीच में से 8 को डिलीट कर दो. And you are done. So that's the delete after. आफ्टर और फर्स्ट अकरेंस में क्या फर्क पड़ेगा?
बिफोर में आगे वाला नोड डिलीट किया, आफ्टर में पीछे वाला नोड डिलीट किया, फर्स्ट अकरेंस में उसी को डिलीट करना चाहते हो वेयर यू फाउंड दैट वैल्यू. डिलीट फर्स्ट अकरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू. ई वेल को आप सर्च करोगे, अगर आपका टी आर उसी नोड पे पॉइंट कर रहा है तो देन यू हैव टू डिलीट टी आर इटसेल्फ. डिलीट, करेक्ट, इट इज समथिंग लाइक डिलीट एट पोजीशन. आप पोजीशन से ट्रैवर्स करते हो, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू से ट्रैवर्स करोगे, बट व्हेन योर टी आर विल पॉइंट टू दैट नोड विच यू वांट टू डिलीट, तो आगे वाले नोड में पीछे वाले नोड का एड्रेस डालो. प्री पीटीआर के नेक्स्ट में टीआर का नेक्स्ट डाल दो एंड यू आर कंप्लीट. सो फर्स्ट अकरेंस भी इजी है. इफ योर स्टार्ट इज नल अंडरफ्लो, वरना आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और आगे वाला नोड भी चाहिए, देन वी नीड प्री पीटीआर, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल. Wait, I'm not saying you can sit. The student before you. Leave the class. I'm not going to say it again. Leave the class. Okay, coming back to this point. Delete first occurrence. What if your start data is existing value? वही आपका फर्स्ट अकरेंस है, वहीं पे आपको वैल्यू मिल गई, देन इट बिकम्स डिलीट फर्स्ट. तो डिलीट फर्स्ट वाला केस, स्टार्ट को नेक्स्ट पे लेके जाओ और पहले नोड को फ्री करो. सो दिस इज नथिंग बट डिलीट फर्स्ट. अगर पहले नोड में वो एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं मिलती है, देन उसको आप सर्च करने जाओगे. यू विल ट्रैवर्स, वाइल लूप से ट्रैवर्स करो, जब तक पीटीआर में डेटा नहीं मिलता, यू ट्रैवर्स इट. PTR equals to PTR next. Along with that, you are going to maintain pre-PTR. अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? वैल्यू मिले तब तक. पॉसिबिलिटी ये भी है कि वैल्यू नहीं है तो आपका PTR नल नहीं होना चाहिए. एडिशनल कंडीशन. when you terminate this loop, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा. इफ योर PTR इज नल, वैल्यू नॉट फाउंड. अगर PTR नल नहीं है तो आप PTR को फ्री करना चाहते हो. बिफोर यू मेक इट फ्री, उसका प्रीवियस नोड जो है उसके नेक्स्ट को अपडेट करो और वो जाएगा पीटीआर के नेक्स्ट पे. देन यू सिंपली मेक योर पीटीआर फ्री एंड रिटर्न. सो दिस इज फर्स्ट अकरेंस. एग्जिस्टिंग वैल्यू को सर्च करते जाओ, जहां भी मिलता है उसको डिलीट करो. What you have done here is, when you are traversing, जैसे ही आपको वो वैल्यू मिलती है, आप वो ट्रावर्सल प्रोसेस रोक देते हो. मतलब जैसे ही आपको फर्स्ट अकरेंस मिलेगा, आप वहीं पे ट्रावर्सल प्रोसेस को रोक दोगे और नोड डिलीट करने के बाद खत्म. तो वो फर्स्ट अकरेंस को डिलीट कर रहा है. व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट ऑल अकरेंसेस? जैसे ही वैल्यू मिलती है उसको डिलीट करने के बाद रुकूंगा नहीं और आगे बढ़ूंगा. आई विल गो एंड सर्च फॉर द सेकेंड अकरेंस. अगर सेकेंड अकरेंस मिलता है तो उसको डिलीट करने के बाद रुकना नहीं है और आगे बढ़ो. गो एंड सर्च फॉर द थर्ड अकरेंस. So it's something like your node delete process should be part of this loop.
यस और नो? लूप जो है वो ट्रैवर्स कर रहा है और पॉइंटर मैनेजमेंट जो है वो नोड को डिलीट कर रहा है. डिलीट करने के बाद आपको रुकना नहीं है, आप और आगे बढ़ना चाहते हो, देन you can go for second, third, fourth, multiple occurrences. So I'm discussing about delete all occurrence. All occurrence में आपको करना क्या होगा, ये delete वाला प्रोसेस जो है वो भी लूप के अंदर लिखना पड़ेगा. We'll stop for today, but in the next lecture we are going to understand how we can delete all occurrences while we are traversing, how we can delete that current node. और अगर ऑल पॉसिबल अकरेंसेस आपको चाहिए तो आप ट्रैवर्स कहां तक करोगे? एंड तक, नल तक. जब तक आपका टीआर नल नहीं होता तब तक आपको ट्रैवर्स तो करना है, तभी आप जितने भी अकरेंसेस हैं वो ढूंढ पाओगे. सो योर व्हाइल लूप विल बी समथिंग लाइक टीआर नॉट इक्वल्स टू नल एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवर्स. Now within that traversal process you are going to compare, क्या मुझे जो डेटा चाहिए वो है इसके पास, अगर है तो डिलीट करूंगा. So we'll see that process in the next lecture. Thank you everyone for being part of this session. See you in the next one where we complete delete process of singly linked list. Along with that we are going to start circular linked list. So that's all for today. See you in the next one.